national seminar and exhibition Organic and Natural Farming organized by the Regional Center of Organic and Natural Farming, Government of India, in collaboration with School of Agricultural Sciences, G.H. Rai Suni University, Sai Kheda. Let us invite Dr. Praveen Botla sir, Program Coordinator of this national seminar, to kindly come forward to address the seminar cum exhibition. Dr. Praveen is working as Senior Officer in Regional Center of Organic and Natural Farming, Nagpur, Government of India. He has a great commitment to the future of organic and natural farming. Sir, over to you. Cum exhibition on organic and natural farming, which is being organized by Government of India, Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, INM Division, Regional Center of Organic Farming and Natural Farming, Nagpur. I am immensely glad to be here, to part of the Government of India and to organize such a spectacular program in the best interest of farmers, in the farming community. The program is all about to bring the farmers, scientists, policy makers and the industry people together at one platform and to exchange, in order to exchange the ideas among them. And government intention is to promote organic farming and natural farming in a very big way, so that it could help our motherland to become healthy and prosperous, in turn which will make us to be healthy and prosperous, and a long living life we will get. So we are very much thankful to the Government of India, Ministry of Agriculture for designing such a wonderful program, giving adequate funds to organize this program, and under the able guidance-ship of our Joint Secretary Franklin sir and the eminent guidance-ship of our Director Dr. Gagnesh Sharma ji and the one and only the visionary Dr. Rajput ji, we could able to organize such a spectacular program. We are witnessing this event. So I am very thankful to you, and I am immensely glad and thankful for all the guests who have come all the way from different places across India. I especially thank from my bottom of heart to Solanki sir, who has come from Kutch, being the chief guest of the function. Thank you so much, sir. And I also extend my sincere thanks to Rani Kumudini madam, who has come from Hyderabad. Her passion, her interest has shaped us here. We were worked under ma'am for designing the PKY scheme. So ma'am, it is all because of your vision and the guidance that we could sit here. Because of the Paramparagat Krishi Vikas Yojana, we have extended the training programs and all the other activities in an immense way across the India. And because of that PKY scheme, we could able to get recognition across the India. Thank you so much, ma'am, for the mentorship you have given to us, and we are taking the legacy forward. So very much glad on this occasion to have ma'am as one of the distinguished guests in this spectacular event. Thank you, ma'am. And also I thank Justice Ambadas Joshi sir, who is another visionary having passion for agriculture
especially for the natural farming and organic farming, with his continuous guidance and the able guidance of our Rajput ji, we could able to bring the diamonds, the gems of the country at one place on this stage. So we should be very much happy to witness this occasion, as just not it's a way to meet, greet, honor and go away, but to ponder upon the thoughts, to ponder upon the organic farming matter. So thank you so much. I wish you all a very pleasant stay here for the 2 days. So मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब यहाँ पे पधारे हुए हैं, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आगे केमिकल फ्री कंट्री बनाने के लिए या केमिकल फ्री फार्मिंग करने के लिए हम आगे कैसे जा सकते हैं, इसका अपन सोच विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। ऑडियंस से भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ, और स्टॉल्स भी लगाया हुआ है। सो इन सब के जरिए हम नॉलेज का एक्सचेंज करके आगे देश को कैसा बढ़ाना है, अपन यहाँ पे ये 2 दिन का इवेंट में भाग लेंगे। साथ ही साथ एक फील्ड विजिट भी रखा गया है रायसोनी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में, तो वहाँ से भी अपने को जो ज्ञान नॉलेज जो मिलने वाला है उसको भी स्वीकार कर लेंगे। और एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, अवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण बात और विषय ये है कि इस मंच से जो भी प्रगतिशील किसान हैं उनका सम्मान करने के लिए हम सबको अवसर मिल रहा है। ये बहुत हमारा सौभाग्य की बात है कि किसान को सम्मान करना मतलब हमारा आत्मसम्मान बढ़ाने का काम है। तो ये मैं बहुत I feel it my privilege, I feel it that it's the grace of God given to me to honor our eminent personality, especially farmers, who is called as अन्नदाता। तो अन्नदाता को मैं फिर एक बार स्वागत करता हूँ इस मंच से। हम सब लोग और बेहतर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को, नेचुरल फार्मिंग सिस्टम को बढ़ाने के लिए मिलके एक साथ काम करने का एक डिसीजन यहाँ से अपन तय करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक प्लेड्ज भी हम लेने वाला है। इन सब बातों को अपन ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं। थैंक यू सो मच। With great honor and pleasure, I now invite Dr. Ajay Singh Rajput, Sir, Director, Regional Center for Organic and Natural Farming, Nagpur, to the stage. We are privileged to have you, sir, with us, whose contribution and expertise have made a significant impact on organic farming. Sir, kindly come forward and address the gathering regarding the event. पंगुलंगिते गिरम यत्कृपातम हम वंदे कृष्णम जगत गुरुम। सबसे पहले मैं इस बनामती की पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ और ऑलमाइटी गॉड को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया जिसमें हमारी जो मेंटर्स बैठे हुए हैं उनके साथ मिलाने का, और आप सब अन्नदाता, मन भी रोमांचित हो जाता है जब हमारे किसान और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से। तो मैं सबसे पहले हमारे आज के जो चीफ गेस्ट हैं आदरणीय मनोज सोलंकी साहब, ये वो पर्सनालिटीज हैं, वो शख्सियत हैं जो ICAR को दिशा देते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक बार क्लैपिंग करिए उनके लिए कि उन्होंने किस तरह से लीडिंग संस्थाएं हैं हमारी प्रीमियम जो एग्रीकल्चर की हैं जैसे ICAR, और मैडम ने तो उनके गाइडेंस में हम लोगों ने काफी सीखा, जैसा डॉक्टर प्रवीण ने कहा। शी वाज जॉइंट सेक्रेटरी INM एंड वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। डॉक्टर रानी कुमुदनी, उनके लिए एक बार क्लैपिंग करिए। अभी वो इलेक्शन कमिश्नर होने के बावजूद भी इतनी, आप समझ सकते हो कि कितनी उनकी व्यस्तताएं हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा इंडस्ट्री को वो बैकअप दे रही हैं, बहुत सारा उनका नॉलेज है जो उन्होंने इतने सालों में गेन किया, वो सब आप सब किसानों के लिए है। मैडम आपका स्वागत करता हूं, और हमेशा ये पूरी वेस्टर्न जोन आपके साथ है और रहेगी। और इसके साथ साथ हमारे बीच में जस्टिस अंबादास जी जोशी, उनके लिए एक बार क्लैपिंग करिए। अभी वो इलेक्शन कमिश्नर होने के बावजूद भी इतनी, आप समझ सकते हो कि कितनी उनकी व्यस्तताएं हैं, और इसके साथ साथ हमारे बीच में जस्टिस अंबादास जी जोशी,
इनका एक बार इनके लिए आप क्लैपिंग प्लीज। डॉक्टर जोशी साहब, अंबादास जी जोशी साहब जब हाईकोर्ट जज थे तब भी उनका नाम विख्यात था, और आज जब वो अभी गोवा के लोकायुक्त हैं और ऐसी डिग्निटी उनके अंदर, आप सोचोगे एक जस्टिस को हमने एग्रीकल्चर में क्यों बुलाया। जब आप उनको सुनेंगे तो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। हमारे किसान, हमारे क्षेत्र के किसान ये सब बैठे हुए हैं, पद्मश्री किसान भी हैं हमारे बीच में, सुभाष शर्मा जी हैं, और ये हत्ती रेड्डी साहब हैं, और हमारे बीच में हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, एनडीआरएफ की टीम हमारे साथ है, जो हमेशा जब हम सब लोग प्रॉब्लम में होते हैं तो वो साथ में होती है। हम उन्हें अच्छे मौके पे हम उनको बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि जब प्रॉब्लम हो तो अभी एनडीआरएफ को बुलाएं। सो थैंक यू वेरी मच सर, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस। आप सब सीख के जाइए कि आपके घर में कभी इमरजेंसी होती है तो क्या करना चाहिए। ऐसे हमारे जो हरिओम गांधी साहब हैं जो एनडीआरएफ के डीआईजी हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, और उनके कमांडेंट्स दोनों दो जो पंकज कुमार जी हैं और हमारे राजपूत साहब। और एक छोटा सा मैं डेडिकेट करता हूँ हमारे इस फार्मिंग कम्युनिटी को कि हजारों वर्षों से नरगिस रोती रही अपने बेनूरी पर, हजारों वर्षों से नरगिस रोती रही अपने बेनूरी पर, कि हजारों वर्षों के बाद पैदा होता है कोई दीदावर। तो आज हम नागपुर में एक दीदावर पैदा कर रहे हैं, जिसमें हमारे ये जो पर्सनालिटीज हैं इनके साथ हम हमारे किसान भाइयों को सम्मान भी करेंगे। और दीदावर का मतलब और नरगिस का मतलब कौन लोग शायद समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि नरगिस का मतलब ये है कि जो हमारी मिट्टी भूमि, ये इसकी क्या हालत है, ये रो रही है कि क्या क्या हम डाल रहे हैं, कितना हम जहर डाल रहे हैं, हमारी थाली में कितना जहर आता है, इसको हमें मापने की जरूरत है। हम बहुत अच्छा ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर करने के लिए जब होटल में जाते हैं तो सबसे पहले बिस्लरी आती है, जो वाकई में बिस की लरी है, बिस्लरी। इट इज नॉट द मिनरल वाटर बट इट इज इन फैक्ट द वाटर। बिस्लरी का जो वाटर है, आप सबको मैं एक निवेदन करूंगा, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, अगर आप फ्लाइट में हो तो ले लो, ठीक है। असली मिनरल वाटर जो होता है, मैं पानी के ऊपर बोल रहा हूँ क्योंकि सुभाष सर में बैठे हैं, एक एक बूंद का हिसाब रखते हैं, तो ये एक्चुअल पानी जो होता है, जो जिसको हम मिनरल वाटर कहेंगे, वो जंगलों से आने वाला, पहाड़ों से आने वाला, वो सब नहीं पी रहे हैं, उसका केवल नाम पी रहे हैं, लिखा रहता है उसमें, बट इट इज नॉट द मिनरल वाटर, सो डोंट ड्रिंक इट। अगर आपको पता होगा कि जैन कम्युनिटी के लोग केवल कुएं का पानी पीते थे, क्यों पीते थे सोचना। तो पानी, मिट्टी और ये पंच तत्व, हम इसको भगवान बोलते हैं। भगवान क्या है, वो एक हमने बनाया है, भा से भूमि, भगवान में भा है ना, और गा से गगन, और वा से वायु, और आ में अग्नि छुपा हुआ है, और ना से नीर यानी जल। तो ये पंच तत्व हैं, इनसे ही मिलके हमारा शरीर बना हुआ है, और इनसे ही मिलके हम, इनके बिना कोई खेती नहीं कर सकता रेड्डी साहब। बिना पानी के, बिना मिट्टी के और बिना हवा की क्या खेती कर सकते हैं। इसलिए जो नेचुरल मिशन और नेचुरल फार्मिंग में एक आपको पता होगा एक कंपोनेंट है जिसका नाम है वापसा। वापसा जानते हैं आप लोग? आज डिटेल में बताएंगे व्हाट इज वापसा, उस पर अभी चर्चा होगी, वो उसी का ही कंपोनेंट है। एयरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम तो ये कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति थी, एक टेक्निकल सेक्शन में बहुत सारा कुछ बताएंगे। आईटी केस, आज हमारी मुलाकात हुई थी, एक आप जरा खड़े हो जाइए जरा। हाँ, ये सुबह सुबह आप दोनों माता जी को भी थोड़ा बोलिए, जरा इनकी तरफ देखिए। ये एक ऐसे किसान है, हाँ माता जी को भी खड़ी कीजिए, इनको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत सारी विधाएं अभी हमारे डीआईजी साहब को और हमारे चीफ गेस्ट साहब को बताई। तो ऐसे किसान, इनके आईटीकेएफ में एक प्रेजेंटेशन होगा और उनको हम सम्मानित भी करेंगे, है ना। आपका नाम बताइए जोर से। अन्ना जी, अन्ना जी, यहाँ पे बहुत पिताजी का भी नाम लिखते हैं, अन्ना जी हंडे। ये पिछले 20-25 साल से मेरे से इतने किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। असली हकदार ये हैं, ऐसी ऐसी विधियां जानते हैं कि कैसे हमें पपीते की साइज बढ़ानी है, और ऐसे ऐसे टिप्स बताएंगे। वो नॉलेज मैं तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जरूर कहूंगा कि ऐसे ज्ञान आपके करिकुलम में रखिए। हमारे किसानों को बड़ी बड़ी रिसर्च की जरूरत नहीं है, वो लाइब्रेरी की शोभा है। बाकी सब ज्ञान जो है, जो हमारे किसान को चाहिए, वो आईटीकेएस है, एक परंपरागत नॉलेज है। जो प्रेजेंट की बात कर रहा था, प्रेजेंट जी बोल रहे थे हमारे, तो डॉक्टर एक्चुअली नॉलेज इज सुप्रीम। मैडम के अंडर में हमने पहली एक ऐसी स्कीम बनाई थी, जो मैडम ने मुझे, जब मैंने ज्वाइन किया था मंत्रालय में एज डिप्टी कमिश्नर, उस समय स्कीम चल रही थी मैडम के अंडर में। इसके बाद में एक नई स्कीम आई थी जो डोनर मिनिस्ट्री की थी, उसके बारे में जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा।
मैडम के मार्गदर्शन में हमने 2 महीने में, दिसंबर में वो एक मीटिंग हुई थी जो कैबिनेट सेक्रेटरीज की, उसमें मैडम के ने पार्टिसिपेट किया था। और वो पूरी डोनर मिनिस्ट्री जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वहाँ की थी, तो वो फिर मैडम ने, उनकी वजह से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आया और पूरी की पूरी स्कीम बनी है जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसमें सिक्किम को पहला स्टेट डिक्लेयर किया था। मैडम के साथ हमने गंगटोक में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने फर्स्ट स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री डिक्लेयर किया था, प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने उस समय। दैट इंटायर प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय रानी कुमुदनी मैडम। सो क्लेप फॉर हर इन हर प्रेजेंस हम कुछ कर पा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो इसको आप तक कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड होगा, और हम जो कुछ भी करते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, यही हमें आज संकल्प लेना है। आप ऐसा मत समझना कि आपको कोई देख नहीं रहा, या जितने भी किसान बैठे हैं, जितने भी ऑफिसर बैठे हैं, इवन उनके माइंड में क्या चलता है ये भी रिकॉर्ड होता है। इसी के आधार पे आपको प्रमोशन, डिमोशन और लाभ हानि होती है जो बिजनेस करते हैं। सबका स्वागत है और थैंक यू वेरी मच GH राय सोनी और उनकी टीम को, खासतौर पे हमारे जो डीन हैं डॉक्टर केवन और उनकी पूरी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। क्लैपिंग केवल डीन के लिए नहीं करना है, सबके लिए करना है। तो क्या इट इज फॉर ऑल, आपको बाकी लोगों के बारे में पता नहीं है, वो भी पता होगा। और आप जब देखेंगे तो यहाँ एक से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। सो ये जो स्कीम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसके बारे में एक सेंटेंस करके मैं खत्म करता हूँ। आपको पता है कि इसका टोटल बजट लगभग 2481 करोड़ का बजट है, जिसमें भारत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1584 करोड़ तक कंट्रीब्यूशन है किसानों के लिए और हमारे स्टेट्स के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी समथिंग इसी तरह का है, जो मान के चलिए कि उसका जो लगभग 15-20% है। तो एक वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है, इसमें 1 करोड़ फार्मर्स को लाभ मिलने वाला है, जो कि आंध्र प्रदेश के RYSS के लोग आए हुए हैं। तो ये नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग रे ऑफ होप है, जो हमारे किसानों को बहुत, एक क्लस्टर में 12 लाख से ज्यादा पैसा आएगा। और मैडम ने एक बार, हमने जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन स्कीम लगाई थी, उसमें किसान के खाते में पहली बार पैसा डालने का काम जो शुरू हुआ था वो उनके मार्गदर्शन में हुआ था, MOBCD NER में। फॉर हर अगेन, सो थैंक यू वेरी मच आप सबको आने के लिए, प्लीज थैंक यू। We are really fortunate to have with us the Vice Chancellor of GH Rai Soni University, Sai Kheda, Dr. Meena Rajesh, a person whose unwavering dedication to the growth and development of higher education has profound impact on countless individuals and institutes. अभी सर ने बोला कि जज है यहाँ डाइस पे एंड अदर रिनाउंड पद्मश्री अवार्डीज आर हियर। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ क्योंकि मैं ना एग्रीकल्चर को बिलोंग करती हूँ, ना मेरे पास ऐसे कोई अवार्ड्स हैं। बट अगर मैं इफ आई हैड टू मेक माई सेल्फ एलिजिबल इन दिस अरेना, मैं अपने आप को एक कंज्यूमर समझती हूँ, ग्राहक, ओके, उपभोक्ता, फाइन। मैं अपने आप को एक ग्राहक समझती हूँ जो हेल्थ कॉन्शियस हूँ और अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो मार्केट में मुझे एक अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक सब्जियां से लेके ऑर्गेनिक पल्सेस, ये सब मैं चाहती हूँ कि मिले। एक साइड में एज ए कंज्यूमर जब मैं देखती हूँ कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर दीज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, बट ऑन द अदर साइड मैं ये देख रही हूँ कि क्योंकि हमारे पास एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, हम छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो फार्मर्स की जो स्टेटस है वो एकदम ऑपोजिट है। मतलब जमीन आसमान का फर्क दिखता है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और बीइंग अ मैनेजमेंट कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, मैं जब हर साल का बजट देखती हूँ कि गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में, वो हमेशा अच्छा खासा रहा है। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? इन दिस पर्टिकुलर बजट ऑफ 2020-25 हमने देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस प्रोडक्टिविटी पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, एंड आई थिंक दिस वुड बी अ गेम चेंजर। क्योंकि इस बजट में बोला गया है कि ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स लिए जाएंगे जहां पे हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे, विच इज अ मस्ट। हम दुनिया में सबसे पहले आते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड यूसेज और एग्रीकल्चर।
we stand in first, but what about the yield? उस जमीन से जो yield चाहिए वो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो आई थिंक द टाइम हैज कम, क्योंकि मैं एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करती हूँ, वी बिलीव इन समथिंग कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब ट्रेनिंग दीजिए, जानकारी दीजिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट वी से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको थोड़ा सा हम अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे कि आज और कल ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर सेमिनार का वर्कशॉप है, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, फार्मर्स भी हैं। लेट एवरीवन लर्न फ्रॉम ईच अदर। मुझे यहाँ आके सिर्फ 1 घंटा हुआ और मैंने 2 बड़ी चीजें सीखी। एक बाहर एक स्टॉल में बायोसिमिलर्स रिलेटेड आई मेट अ लेडी, मतलब माइंड ब्लोइंग थिंग्स, जो कि ये जानकारी अगर आने वाले जनरेशन जो स्टूडेंट है ये जान ले, दिस इज हाउ वी कैन ग्रो एज अ सेक्टर। फाइन, सिंस आई सी अ गैप एंड वी कुड ब्रिज द गैप व्हिच इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, फार्मर्स को भी अच्छी कीमत मिले, अच्छी मार्केट मिले, and this is the main objective of such capacity building program. I should thank the organizers for taking us on board. हम academics वाले क्लासरूम में पढ़ा के छोड़ देते, theory practical, but जो recent trends है, जो market में हो रहा है, ये हम एक दूसरे के साथ exchange करें. Now this platform brings in 2 Padma Shri awardees. Now what a learning, this is not there in textbook. ये हमको बच्चों को टेक्स्ट बुक पे नहीं मिलता, या टीचर नहीं बता पाएगा जो ये लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. So I want each and every student who is here, as well as a common man like me, a consumer like me, should be aware about all these things, the trends that are happening in the agriculture sector. And as I told you, जो stakeholders हैं, government officials हैं इस arena में, we have farmers, we have scientists, and we have a layman like consumers like me. If we come together, and I think there begins the next, जो हम बोलते हैं ना इंडस्ट्री 5.0, 4.0, एग्रीकल्चर का भी होना चाहिए समथिंग लाइक 2.0. फिनेंशियल एड से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे अपना ध्यान होना चाहिए कि ये लोन माफ कर दो, वो लोन माफ कर दो, यहाँ तक नहीं रखना है एग्री सेक्टर को. वी हैव टू टेक इट बियॉन्ड द फाइनेंशियल एड, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक that such programs will add on to the ecosystem of building a strong agri infrastructure in our economy, and this would take us to the Viksit Bharat 2047. I wish good luck to all the organizers here as well as the participants. Let us make this 2 days a very good learning experience for all of us, and take out some key learnings that we would apply apart from what we call a theoretical knowledge. Thanks for giving us the opportunity as an university to be part of this program, sir. And I thank you all for the opportunity given. Thank you. With deep sense of gratitude and honor, I hereby invite Justice Ambadas Joshi ji. He is a retired Bombay High Court judge, Lokayuga, Goa. During his judicial career, he worked on civil as well as criminal side. He was appointed as a special judge under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. He was also appointed as a special judge under Prevention of Corruption Act for taking up the matters investigated by CBI. Please join your hands together to invite Honorable Justice Ambadas Joshi. नमस्कार. डिग्निटीज ऑन डायस पे बैठने वालों को भी काफी बार सीखने को मिलता है, या मैं सीख के आया हूँ. लेकिन मैंने सोचा ऐसा हो सकता है कि मैं जो भी बात करूँ उसमें से कोई 1-2 चीजें आपके लिए नहीं हो. मैं किसी एक बहुत बड़े आदमी को मिलने गया था कुछ बताने के लिए, और पहले ही क्षमा याचना की, इसलिए ये बताया कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको पता नहीं है. मैं इसलिए बोलने आया हूं, ऐसा हो सकता है कि ये चीज आपको पता नहीं और मैंने खुद के पास रख ली.
मैं शुरुआत एनडीआरएफ वालों से करना चाहूंगा। देयर इज अ रीजन। पिछले ही हफ्ते मैंने आपका बहुत बड़ा 2 वॉल्यूम 600 पेजेस का वो डाउनलोड करके पढ़ना शुरू किया था। वजह कुछ अलग थी, कोई केस नहीं आई थी, क्योंकि मैं अभी रिटायरमेंट के बाद में दोबारा प्रैक्टिस एज ए लॉयर शुरू किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई केस का किस्सा नहीं था। लेकिन कोई इशू था, somebody was asking me कैपेसिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ एनडीआरएफ, इसलिए मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो उस दिन से लेके आज तक मेरे सिर में जो बहुत स्टॉर्म चल रहा है वो यह है कि क्या वो समय आया है कि हमें कृषि कार्य में भी एनडीएफ का सहारा लेना पड़े। और मैं वजह बताता हूँ। क्या आपने ये पढ़ा सुना है कि जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ी कर रही है उसके दूध में भी पेस्टिसाइड का रेसिड्यू आ गया है। ये पुरानी बात है, नई नहीं। अगर ये हमारे जमीन की हालत है तो ये नेशनल डिजास्टर है या नहीं। अभी पीछे बैठे हुए जो बच्चे लोग हैं ना, स्कूल कॉलेज बॉयज, उनके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। मैडम, आपके स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, ये जो अन्न ग्रहण करते हैं ना हम लोग, ये अन्न में जब विष जाता है, कोई रसायन विशिष्ट मर्यादा के ऊपर जाता है, तो वो शरीर के अंदर कैसे काम करता है? क्या ये हमारे अध्ययन का वो हिस्सा है? मैं उल्टा नहीं पूछूंगा। द क्वेश्चन इज, नहीं जवाब है। क्यों नहीं पूछेंगे? मैंने मेरे दोस्तों से टॉर्चर किया था, मेडिसिन वाले, कि मेहरबानी करके एक्सप्लेन करो कि चूहे का जो जहर है वो शरीर में कैसे काम करता है, सांप का जहर है वो शरीर में कैसे काम करता है। वो जब चुप बैठ गया तो मैंने बोला, आयन एक्सचेंज होता है क्या? ये सुना है आप लोगों ने, विद्यार्थियों ने? जब एक ऑक्सीजन कण लिया जाता है या छोड़ा जाता है तो उसका जो विद्युत भार है वो शरीर में जाने के बाद में पूरा स्वरूप बदल जाता है। आपको पता है दूध का दही कैसे बनता है? वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो एसिड छोड़ता है। ये जो सूक्ष्म जीवों का जो विष्ठा या जो कुछ एक्सक्रीटा है वो आम्ल है, और जैसे ही दूध में आम्ल चला जाता है तब दूध में के घन और द्रव्यों का अलगीकरण किया जाता है। क्या इसमें आयन एक्सचेंज है? आप कल्पना करो, जैसे कोबरा का जहर शरीर में चला गया तो रक्त का विश्लेषण करके मेंदु और हृदय की प्रक्रिया बंद कर देता है। वाइपर का जब जहर शरीर में चला जाता है तब वो रक्त का दही स्वरूप बन जाता है, और जैसे दही जमता है वैसे खून जम जाए तो क्या होगा? हम जो भी अन्न के साथ विष खा रहे हैं, ये विष का शरीर के अंदर जाने के बाद में क्या होने वाला है? अभी कृषकों के लिए बोलता हूँ, बच्चों ने सुन लेना चाहिए। मेरा एक मित्र है जो सिल्क फार्मिंग करता है, बहुत शौक से। सिल्क का भाव बढ़ गए हैं। मैं लेकिन बैड न्यूज भी बताता हूँ, सिल्क का भाव नहीं बढ़ रहा है, कपूस का भाव नहीं बढ़ रहा है। चाइना का जो सिल्क आ रहा है ना, वो इंडियन सिल्क को कॉम्पीट कर रहा है। पिछले 4 साल से सिल्क का रेट मेंटेन्ड है। चलो मैं सिल्क फार्मिंग पे आता हूँ। उसने सिल्क बनाया, मलबेरी लगाया, कीड़े आए, और वो कीड़ों के जब पत्ता खिलाया और जब कीड़े बन के सीधा फुलपत्र बन गए, रेशम दिया ही नहीं, क्या हो गया? हमारे छानबीन के जो पता चला, हमारे मतलब, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ लेकिन वैज्ञानिक का दोस्त हूँ, तो खेत में जाके ढूंढता हूँ, उसका हिस्ट्री निकला। उसने पिछले 6 साल में जो सब्जियों पे पेस्टिसाइड डाला था, उसके परिणाम स्वरूप वो कीटक के ब्रेन में जो डाटा करप्ट हो गया। उसने बोला कि अभी मेरे को पहले प्रजाति निर्माण करना है, रेशम निर्माण करना नहीं है। वो बैच ने रेशम बनाया ही नहीं। अभी यहाँ पे कई लोग अपने डॉक्टर दोस्तों से पूछो जाके कि नई पीढ़ी में प्रजनन क्षमता कम हुई है या नहीं हुई है ना? आप देखो, कभी अगर इनफर्टिलिटी का डॉक्टर ढूंढना है तो मुंबई, दिल्ली, मद्रास जाना पड़ता था। आज हर कैपिटल स्टेट में
से लेकर हर रीजनल स्टेट में हर 4 किलोमीटर पे फर्टिलिटी सेंटर है। व्हाट हैज हैपेंड? हमारे शरीर को क्या हो गया है? इसकी सोच करना पड़ेगी। एनडीआरएफ कम्स इन पिक्चर। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि लोगों को खेती बंद करो, कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों को दिमाग पे काम करना पड़ेगा। डिजास्टर एट व्हाट लेवल? इट हैज बिकम वेरी वेरी सीरियस इशू। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ और आगे जाता हूँ। एक लड़की और उसके पिताजी सब्जी खरीदने गए, तो पिताजी ने अच्छे दिखने वाले गोभी टमाटर खरीद लिए। तो बच्ची ने पूछा कि ये क्यों नहीं खरीदा, ये क्यों नहीं खरीदा? तो बोले इस पर कीड़ा है इसलिए नहीं खरीदा। तो इस पर कीड़ा नहीं इसलिए खरीदा। तो बोले इस पर कीड़ा क्यों नहीं? तो बोले इस पर पेस्टिसाइड मारा है। तो इससे क्या होता है? कीड़ा मरता है। तो जिससे कीड़ा मरता है वो हम खाते हैं। कीटक मरने का शास्त्र। अभी शर्मा जी की खेती सामने आ जाती है। मैंने उनको खेत को 10 बार प्रत्यक्ष जाके भेंट करके आया हूं। शर्मा जी शायद भूल गए होंगे, आपके अरहर के खेती में अरहर समझते हो ना? खेती में हर एक पौधा जिसकी हाइट 3.5-4 फीट है, एक एक झाड़ पे 300 से लेके 400 तक डोंगड़े, जिसको हम मराठी में मुंगड़ा बोलते हैं, बड़ी वाली एंट। और अरहर का पेड़ इतना गंदा होता है कि सफेद कपड़े पहन के जाओ तो शाम को धोने लगे डालना पड़ेगा तुरंत। ये कीटकों ने कोई भी दूसरे कीटक का अवशेष नहीं छोड़ा था। बायो पेस्टिसाइड को मैं बहुत डरता हूं। अभी यहाँ पे 600 स्टॉल है पेस्टिसाइड के। आपको पता है आयुर्वेद में फैमिली कंट्रोल के लिए कौन सी दवा यूज की जाती थी पहले? दैट वाज नीम ऑयल। और हम तो हमारे खेत पे नीम ऑयल डाल रहे, नीम की पेंट डाल रहे। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इज ऑल्सो पेस्टिसाइड। उसमें कुछ जहर है इसलिए तो यूज कर रहे हैं ना। तो हमको ये चाहिए कि हमारे खेत में का जो कीड़ा आ रहा है उसको कोई परस्पर खा जाए। ये जो डोंगले वाली बात है ना, मुंगले वाली, उसको आगे का मैं आपको एग्रीकल्चरल साइंस बताता हूँ। आप बोलेंगे बहुत साइंटिफिक बात कर रहे हो। ये जब डोंगला जो झाड़ पर का कीड़ा खाता है ना, तो बाद में करता क्या है पता है? जमीन के अंदर 3 फीट होल बना के अपना घर बनाता है। इसको प्रोविडेंट फंड नहीं लगता, वेज नहीं लगता, इंश्योरेंस नहीं लगता, वेजलेस वर्कर है। और जब 3 फीट जमीन में छेद बनाता है तो बारिश का पहला पानी जमीन में सीधा 2.5-3 फीट जाएगा। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ये मतलब होता है। पहले जमीन का फिजिक्स समझ लो। फिजिक्स से अंग्रेजी शब्द यूज किया ना, मैं मराठी या हिंदी यूज करूंगा। पदार्थ ज्ञान, जमीन का पदार्थ विज्ञान समझो। ये पदार्थ विज्ञान के साथ साथ मुझे गोबर पे भी बात करना है। मैं बहुत घूमता हूँ, मुझे बहुत लोग सिखाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन है मेरे पास, आके पढ़ा के चले जाते हैं। जो जमीन में आप खत नहीं डालोगे वो जमीन की रेती होने को टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद। I'd like to invite Mr. Chintala Venkat Reddy, the organic farmer, received Padma Shri, a farmer known for his soil and nutrient management technique in farming. He is first independent farmer in India to receive international patent for his technique in soil swapping and soil fertility. Please join your hands together for Chintala Reddy sir. सबको नमस्कार। या डैश में है सब, और किसान भाइयों और वैज्ञानिक सब भाई बहनों, मैं एक साधारण किसान हूँ, मगर इन्वेंशन वो इनोवेशन में दो या 3 से ज़्यादा ही इंटरनेशनल पेटेंट्स मेरा नाम का ऊपर है। ये पहला पेटेंट इंग्लिश में कहा जाता है ए प्रोसेस टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल इन द कल्टिवेटेड लैंड्स। इन द कल्टिवेटेड लैंड, ए प्रोसेस टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल इन द कल्टिवेटेड लैंड्स। ये 2005 में 5 जनवरी पब्लिकेशन हुआ। इसका अप्रिशिएशन
2006 में पब्लिकेशन होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हैदराबाद आके प्राइवेट विजिट में मेरा अपॉइंटमेंट लेकर आया और इसे अप्रिशिएट करने के लिए एक 10 मिनट 15 मिनट वहाँ रुके और बहुत बढ़िया काम किया रेड्डी जी, यू हैव डन ए गुड मैनकाइंड बोल के हाथ में मिलाकर छोड़ा नहीं। ये गर्व की बात है, अपना देश का गर्व की बात है, अपना इंडिया का गर्व की बात है। ये मेरे लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान का गर्व। ये अंतर इसके बाद ये पेटेंट के बाद इसमें ऐसा जुड़ा हुआ है, मिट्टी कीटनाशक दवा हो रहे और मिट्टी फसल का पोषक तत्व हो रहे। मिट्टी स्प्रे करने से फसल का पोषण भी हो रहे। मिट्टी के आजकल बहुत वीडियोस है मेरा, ज़्यादा बोलने से, और यूट्यूब में जाके CVR सॉइल टेक्निक इतना ही टाइप करो यूट्यूब में, बहुत हिंदी में, तेलुगु में, हर भाषा में, पंजाबी में, गुजराती, मराठा, सब भाषाओं में वीडियोस आएगा। और ये गूगल में जाके चिंतला वेंकट रेड्डी फार्मर बोल के बोले तो वो विटामिन डी का भी इन्वेंशन किया। ये अपना माननीय प्रधानमंत्री 2020 में 21 में इसका जिक्र करा मन की बात में, विटामिन डी इन राइस एंड व्हीट। और ये सब अब अभी तक अपना बड़े साहब बोल रहे थे सब कीड़ों के बारे में। ये कीटनाशक दवा, मिट्टी कैसा कीटनाशक दवा हो गए ये पूरा दुनिया को मालूम नहीं, मगर अपना छोटे छोटे किसानों तक अभी नहीं पहुंचे। पहुंचना जरूरी है क्योंकि कीटनाशक दवा स्प्रे आजकल कपास में और फूल गोभी में, वेजिटेबल्स में, सब में पूरा कीटनाशक दवा से भरपूर कर रहे हैं। इसको नियंत्रण करने के लिए अपना ऑर्गेनिक, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सेंटर भी थोड़ा इसको जान करके ये टेक्नोलॉजी का और विस्तार करने से और बढ़िया पूरा अपना हिंदुस्तान कीटनाशक दवा और फर्टिलाइजर और क्लाइमेट चेंज ये सब से नियंत्रण इसी से होगा, सॉइल टेक्निक से। इसका एक 2020 में G20 समिट का भी वो प्रेजेंटेशन करा, वो भी PDF अपना इधर NCOF डॉक्टर प्रवीण को मैं पास ऑन करूँगा, सब लोग इधर से लिए। और मिट्टी, सिर्फ मिट्टी, सबसॉइल गहराई का 2 फीट का नीचे, 2 या 3 का फीट का नीचे में कितना क्ले सॉइल रहता, वो चिकनी मिट्टी ऐसा वो सबसॉइल लेके 200 लीटर पानी में एक 20 किलो मिट्टी डाले तो सब एक 10 मिनट अच्छी तरह से गोलने के बाद एक आधा घंटा रुक जाना, वो सब वजन वाला मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। ऊपर जो तैरता वो मिट्टी को लेके छान लेके स्प्रे करे तो सबसॉइल का एक लेयर पौधों का, पत्तों का ऊपर रहता, तो वो तुरंत ग्रोथ पकड़ेगा और वो एक लेयर फॉर्म हुए तो लेयर स्टिकी सब्सटेंस, वो क्ले कंटेंट का, वो कीड़ों को नहीं बचेगा। वो स्प्रे करने के बाद वो कीड़ों का माप ही अंडा नहीं देगा उधर। और वो नहीं, पहले स्प्रे करने के बाद वो एक 15 दिन सोचा, अरे मैं बचपन में मिट्टी खाता था, मेरे को कुछ नहीं हुआ, और पशु पक्षी सब मिट्टी खाते, तो उसको भी कुछ नहीं होगा। ये कीड़ा कोई कैसे मर गया है, ये कीड़ों को क्या हो जाए,
एक 15 दिन सोचने के बाद अभी आजकल स्मार्टफोन आ गए ना, गूगल में जाके डू इंसेक्ट हैव लीवर बोल के टाइप करा, नो इंसेक्ट नॉट हैव लीवर एंड लंग्स बोला। लीवर लंग्स में तो वो चिकनी मिट्टी शरीर का ऊपर, कीड़ों का शरीर के ऊपर गिरे तो श्वास भी बंद होता, और लीवर नहीं की वजह से वो थोड़ा काटे वैसे ही रहेगा, बीच में 1-2-3 घंटे में नीचे गिर जाएगा। कभी नीचे गिरे तो चींटे सब खा जाएगा उसको। ऐसा कंट्रोल, ये सब अभी ये टेक्निक पूरा दुनिया के अंदर चले गया, अभी भी चलना है। कभी भी सच्चाई देरी से फैलेगा, सच्चाई अपने आप जल्दबाज नहीं करते। ऐसा सच्चाई ऑलवेज टेक्स इट्स ओन टाइम, और ये टाइम ये सब बहुत बढ़िया, अपना ऑर्गेनाइजर भी बहुत अच्छा करे। एक धन्यवाद दे रहा हूँ। आदरणीय व्यासपीठ और सभागृह में उपस्थित भाई और बहनों, मैंने खेती की शुरुआत 1970 से की। 1970 से आज तक मैंने कृषि में 2 विज्ञान देखे, एक विनाश का विज्ञान और एक निर्माण का विज्ञान। चुनौतियां थी, विनाश के विज्ञान को ज्यादा दिन कैसे स्वीकार सकता हूं मैं? तो पहले मैं केमिकल फार्मिंग किया करता था, जहर वाली खेती किया करता था, उसको ज्यादा दिन स्वीकार नहीं किया। 94 में उसको मैंने रोक दिया कि नहीं, इसको रोक देना चाहिए। फिर मैंने जो बाद में खेती की वो कंस्ट्रक्टिव साइंस था, निर्माण का विज्ञान था, ऐसा मुझे बाद में समझ में आया। तब मुझे समझ में आया कि दुनिया में ग्रेट यूनिवर्सिटी कौन सी है। तब मुझे लगा कि इवोल्यूशन ऑफ नेचर में जो जो क्रिया हुई और वो क्रिया से जो निर्माण हुआ वो ग्रेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि करोड़ों साल तक धरती को हरा भरा रख सकती है, उससे अच्छा ज्ञान कहां मिल सकता है। तो मेरी एक आदत थी हिसाब रखने की, मैंने क्या खोया और क्या पाया। तब उसमें वो आकलन में मुझे ऐसे लगने लगा कि मैंने बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हैं। अब मैंने अपने ऊपर लेके बोलता हूं, लेकिन हम समूह में ये सब बात की है। मुझे ऐसा लगा कि ये सारी व्यवस्था में 4 प्रॉब्लम मूल रूप से हम उससे जूझने जा रहे हैं। तो जो भी हमारी जिस ढंग की हमारी शिक्षा हुई, जिस ढंग का हमारा पृथ्वी के साथ जो व्यवहार हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज क्रिएट कर रहे हैं हम या हो रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। ये हम किसानों को तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन समाज को भी नहीं छोड़ेगा। आने वाले कल में फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होंगे, कई प्रॉब्लम होंगे। तब मैंने हिसाब किताब में देखा कि इसका सॉल्यूशन कहां से मिल सकता है। तब मुझे समझ में आया कि एग्रीकल्चर से मिल सकता है। एग्रीकल्चर यानी क्या? तब मुझे वो एग्रीकल्चर की बात समझ में नहीं आई। एग्रीकल्चर यानी अच्छे कल्चर, एग्री यानी अच्छा, कल्चर वो चाहिए मुझे, उससे ये शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर दूसरा प्रॉब्लम समझ में आया कि सॉइल फर्टिलिटी का बहुत हमारे पूरे देश में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उसके ऊपर लगातार कई सालों तक इसका अभ्यास करते करते अब उसका प्योर सॉल्यूशन मिल गया है कि हम तेजी से सॉइल फर्टिलिटी को 1 साल में ग्रो कर सकते हैं। और इसका सीधा सर डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंध है। आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे आने वाले कल में कि उससे ज्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। तीसरा, पानी को समझा कि पानी से नया रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग के थ्रू पानी से न्यू रेवोल्यूशन, यानी एक क्रांति, पानी से क्रांति। तो अभी तो हम ऐसे दिशा में जा रहे हैं कि वो हमारे लिए डिजास्टर बन रहा है। वो डिजास्टर नहीं, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा पूजनीय चीज बन जाए पानी। उसके साइंस को समझना हमें जरूरी हो गया। और चौथा प्रॉब्लम, पर्यावरण असंतुलित कर दिया हमने, उसमें संतुलन नाम की चीज ही नहीं है। वो संतुलित बनाना होगा। तो ये पूरा नॉलेज कहां से मिलेगा?
धीरे धीरे समझते समझते ही गया, तब मुझे इवोल्यूशन ऑफ नेचर की याद आई कि इवोल्यूशन ऑफ नेचर ये ग्रेट साइंस है, इसमें परस्पर पूरकता, यानी ये इवोल्यूशन ऑफ नेचर की 2 साल की, 20 साल की, 100 साल की स्टडी नहीं की, तो जब से इवोल्यूशन ऑफ नेचर हुआ तब से उसकी स्टडी की कि इसमें कैसे इसके प्रिंसिपल बने। तो मुझे 3 प्रिंसिपल समझ में आए इसमें। पहला प्रिंसिपल परस्पर पूरकता। देखो इवोल्यूशन ऑफ नेचर हुआ ना, तो सबसे पहले सूर्य से निश्चित अंतर पर पृथ्वी, उसके बाद में मिट्टी पानी बना, फिर वृक्ष वनस्पति बने, फिर जीव जंतु पेड़ पौधे पक्षी बने। ये सबके आपस में रिश्ते थे, वो उसका नाम एग्रीकल्चर है। वो रिश्तों को हमने तोड़ दिया है, वो रिश्तों को पुनर्स्थापित करना है, एग्रीकल्चर है। अब वो इवोल्यूशन ऑफ नेचर में 3 प्रिंसिपल मिले, परस्पर पूरकता, यानी एक के लिए परस्पर पूरक विज्ञान को हम जब तक एग्रीकल्चर में खड़ा नहीं करते ना, राइट वे से नहीं जा सकते हम। अगर हमको राइट वे से जाना है तो परस्पर पूरकता के सिद्धांत को फिर से एग्रीकल्चर में प्रस्तावित करना पड़ेगा। दूसरा संतुलन, हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। अभी तो पूरा काम ही असंतुलित हो गया है। हमें कितने पेड़ चाहिए, कितने जीव जंतु चाहिए, कितने मांसाहारी पशु चाहिए, कितने शाकाहारी पशु चाहिए, इसका कोई संतुलन नहीं है। ये संतुलन के साइंस को हम समझ जाएंगे तब रियल एग्रीकल्चर की तरफ हम जाएंगे। तीसरा स्वावलंबन। एग्रीकल्चर में कहीं पे भी परावलंबन की व्यवस्था नहीं है। मैं इसकी स्टडी की तो करोड़ों साल तक इस धरती के ऊपर किसी ने स्प्रे नहीं मारा, तो स्प्रे नहीं मारने वाले विज्ञान को हम कैसे विकसित कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तब वो बात को मैंने समझा कि विदाउट स्प्रे के मेरी एग्रीकल्चर कैसे हो सकती है, उसको समझना है मुझे। तब मैंने उसकी स्टडी की करोड़ों साल की। अरे कहीं कोई स्प्रे नहीं हुआ था, लेकिन धरती हरी भरी थी। क्यों थी वो? तो उसका कारण था संतुलन। अपने नेचर में 25% शाकाहारी कीट थे, जिसको हम शत्रु कीट बोलते हैं, और 75 मांसाहारी कीट थे, जिनको हम मित्र कीट बोलते हैं। वो बैलेंस था, वो संतुलन था। वो संतुलन अगर मैंने मेरे एग्रीकल्चर में प्रस्तावित किया तो मेरे पीठ का पंख गायब हो जाएगा, डेफिनेटली गायब हो जाएगा। मैंने स्प्रे मारना ही बंद कर दिया है। तो इस ढंग से संतुलन अपने आप में बहुत बड़ा, मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके कई एग्जांपल ढूंढे और उसके सहारे फिर एग्रीकल्चर को सेट किया कि ये एग्रीकल्चर रियल इस वजह से जाए तो हम कई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सेल्फ सफिशिएंसी यानी स्वावलंबन की तरफ भी जा सकते हैं। फिर ये कैसे होगा? तो हमको इसका नॉलेज एग्रीकल्चर का दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके भी 3 प्रिंसिपल है। पहला नॉलेज, प्लानिंग और लेबर, ये 3 प्रिंसिपल है। हमको इसका नॉलेज होना चाहिए, फिर इसका प्लानिंग आना चाहिए कि ये एग्रीकल्चर को ऐसा सेट किया जा सकता है, और फिर इसका श्रम के द्वारा, श्रम बहुत सुंदर उपहार नेचर ने हम सबको दिया है। ये नेचर के थ्रू जितने भी सजीव है सब श्रम करते हैं। श्रम को हमने हल्का कर दिया कि भाई पानी का गिलास मैं क्यों उठा के रखूं, मैं क्यों कुदाली चलाऊं। अरे जो कुदाली चलाएगा, जो मेहनत करेगा, वो नेचर के साइंस को डेवलप कर रहा है। तो श्रम से हम आगे बढ़ेंगे, नॉलेज और प्लानिंग और श्रम, ये 3 से। इससे होगा कैसे? तो फिर जो नेचर में जो जो घटनाएं घटी उसके अनुरूप मैंने एक फॉर्म की डिजाइन तैयार की। वो डिजाइन मुझे सक्सेस की ओर लेके चलेगी। वो डिजाइन में तो हमारी मानसिकता को बदलना होगा कि किसान के उपज को हम सस्ते में खाने की जो हमारी गंदी मानसिकता हो गई है उसको भी कहीं चेंज करना होगा, तो कृषि के अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद। पद्मश्री सीवी रेड्डी साहब है, पद्मश्री हमारे सुभाष शर्मा साहब है। यहाँ पे मैम रानी कुबुर्नी मैम है जो अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तेलंगाना है। मेरे जस्टिस अम्बादास जोशी सर जो हमारे एक बुजुर्ग और बहुत सीनियर और बहुत वेल नोन, जिनका मैं रोल मॉडल समझता हूँ कि उनके पद कमरों पे हम लोग चलना चाहिए। सोलंकी जी है यहाँ पे, रायसोनी के वीसी मैम भी है, गांधी जी है जो एनडीआरएफ के यहाँ पे हेड है, डायरेक्टर है, और सभी मान्यवर में पंकज जी है और हमारे सभी साथी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, और हमारे सभी शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, ऑर्गेनिक फार्मिंगची खरी ओळख मला
पद्मश्री सुभाषजी शर्मा साहेब जे आहेत यांच्या शेतावर मी 2005ला गेलो होतो आणि त्यावेळेला खरं माझी उस समय पे मेरी पहचान जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हुआ, क्योंकि उस समय पे जो हम लोग उनके यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिसको सांबार या कोथिंबीर कहते हैं, धनिया पत्ती, तो वो धनिया पत्ती जो थी उसको उन्होंने हमारे हाथ पे यहाँ पे रख करके रखा था। वो पूरा जो हमारा वापसी तक जो है उसका स्मेल नहीं गया, और वहाँ का जो धनिया जो था वो धनिया का भी स्मेल इतना सुंदर आ रहा था, और वहाँ पे जो खाना हमने उनके यहाँ पे खाया, इट वॉज जस्ट अनपैरेलल्ड। मेरा यही कहना है कि उसके बाद में मुझे अवसर मिला इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, एक हमारे जो 6 जिले जो है, अमरावती डिवीजन के 5 जिले और नागपुर डिवीजन का वर्धा, यहाँ पे जो फार्मर सुसाइड हो रहे थे उसमें मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर करके काम करने का लगभग 4-4.5 साल वैसे मैंने वहाँ पे काम किया। उस दरम्यान भी जो है मुझे फिर से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी करने का अवसर मिला, और हमने उस समय पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी काफी हद तक लाने की कोशिश की, क्योंकि सर्व करके एक संस्था थी संजय रोमन जी की, और उसमें वो हिमाचल से उत्तराखंड से थी, तो सर्व से भी हमने उसमें काफी हम लोगों को मदद हुई। मेरा एक ही कहना है, मैं खुद भी फार्मर हूँ, मेरी पुश्तैनी जमीन भी है। फार्मर का एक ही होता है कि उसको अपना घर चलाना होता है। ऑर्गेनिक के जो भी सारे अभी हमने यहाँ पे सुभाष जी ने भी जो सारे उसके जो फायदे जो है, पर्यावरण है, ये सारी चीजें बताई है, बहुत सही है, लेकिन उसको अपना डे टू डे भी जो है वो चलाना पड़ता है। उसके लिए एक बहुत बड़े नेटवर्किंग की जरूरत है, मार्केटिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक मार्केटिंग नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं होता है। मैं जब यहाँ पे मैम अभी भी मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ, एडिशनल चार्ज है, वैसे ही इससे पहले भी लगभग 2.5-3 साल मैंने एडिशनल चार्ज, जब मैं डीएम था नागपुर, उस समय में भी मेरे पास में बनामती जो है एडिशनल चार्ज में था। मैंने उस समय पे हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो भी हमारे सिविल अस्पताल होते हैं, सिविल हॉस्पिटल भी होते हैं, वहाँ पे रोज पेशेंट्स को जो खाना मिलता है वो हमारे ऑर्गेनिक खाना क्यों नहीं मिले हम लोगों को। सो आई हैड रिटर्न टू ऑल दी कंसर्न अथॉरिटीज, सेक्रेटरीज एंड एवरीवन, इसको हम लोगों को एक जैसे कोई भी चीज गवर्नमेंट में कोई भी चीज आपको हासिल करनी हो उसके लिए काफी पुश लगता है, कोई भी पॉलिसी डिसीजंस होने हो तो उसके लिए काफी पुश लगता है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई पर्सनली फील कि ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है इतना में यूनिटी या एक जो फोर्स होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है, मे बी ड्यू टू द लेसर नंबर, और मे बी अपने आप में खुश रहने वाली जो मानसिकता बन जाती है शायद उसकी वजह से भी। वी हैव टू, हम लोगों को जो है जब तक हम लोग इकट्ठा होकर पॉलिसी में नहीं बदलाव करेंगे तब नहीं होगा। उस समय पे हमने ये भी कोशिश की थी कि हमारे जो SC ST के और एक सर्विसमैन के जो बच्चों के लिए जो हॉस्टल्स होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वहां पे भी हम क्यों ना ऑर्गेनिक एक ये जो है खाना जो है वो मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है अगर इस तरीके से उसको ली जाए तो शायद हो सकता है। और मैं तो समझता हूँ कि भले वो ऑर्गेनिक फार्मर हो या केमिकल यूज करने वाला फार्मर हो, जब तक वो मार्केटिंग में वो अपना कदम नहीं रखेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। भी सुभाष जी के यहाँ पे जो है हम लोग जब गए थे तो उनका अपना एक क्लाइंटल बन चुका है, उनका एक उपभोक्ता जो है वो बन चुका है, तो सुभाष जी की तरफ से सारी चीजें खरीदता है। सो देन ही कैन डिक्टेट क्या उसमें उनको जो भी मिल रहा है, पैसे जो मिल रहे हैं वो देते हैं, लोग खुशी से देते हैं क्योंकि उसकी जानकारी भी है। और हम लोगों को शायद मुझे ये लगता है कि ये अगर हमारा ग्रुप ढंग से बन गया, हमारा नेटवर्किंग ठीक रहा, क्योंकि मैं भी 31 मार्च को अभी रिटायर होने जा रहा हूँ, तो मैं भी ये ग्रुप में शामिल हो रहा हूँ। हमारी भी पिछले 5 साल से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग ही चल रही है, कोई केमिकल्स यूज नहीं करते, कोई फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते। तो मैं भी आप में शामिल होने वाला हूँ ये 1.25 महीने के बाद में। देन इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे ये लगता है कि एक पॉलिसी डिसीजन होना बहुत जरूरी है
वी हैव टू एक्ट इन ग्रुप, उसके लिए नेटवर्किंग जरूरी है, तब जाके काफी चीजें हो सकती है। देखिए आज की तारीख में हमारा जो कोल्हापुर करके जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का सबसे प्रगतिशील डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वहां पे कैंसर के पेशेंट कितने हैं, वहां पे काफी कैंसर के पेशेंट है। तो ये जो सारी चीजें हैं लोगों को समझ रहा है, लेकिन उसकी जितनी पब्लिसिटी हम लोगों ने करवानी है उतनी नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट की तरफ में पॉलिसी बना के उसको हम लोग बाध्य कर सकते हैं कि भाई नहीं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देनी चाहिए। और उसी समय पे हमारा भी जो वॉल्यूम है, जो हम लोग अगर रिप्लेस करना चाहे तो वो भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों चीजें जो है साथ साथ में जब चलेंगी तब जाके मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मर को भी अच्छा पैसा मिलता जाएगा। और नहीं तो आज की तारीख में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस और जो बाकी का जो प्रोड्यूस है उसमें कौन फर्क कर रहा है, बहुत कम लोग हैं उसमें फर्क कर रहे हैं। सो आई पर्सनली फील कि नेटवर्किंग और गेटिंग टुगेदर, सब लोग इकट्ठा होना, जो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वो इकट्ठा होना, ये बहुत जरूरी है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जब तक नेटवर्किंग करके इकट्ठा होकर पॉलिसीज में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक शायद मार्केट्स हम लोगों को नहीं मिलेंगे। और मार्केट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि हम जो भी पैदावार करते हैं तो मार्केट्स के लिए करते हैं, घर का कंजम्पशन तो होता ही है, लेकिन मार्केट्स से हम लोगों को अगर एक अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो वी हैव टू मेक द पॉलिसी चेंजेस। इतना मैं यहाँ पे कहूँगा। और थैंक यू फॉर फेलिसिटेटिंग मी डॉक्टर राजपूत सर। और यहाँ पे सभी महान विभूतियों से जो ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी से मेरी इस अवसर पे हमारे यहाँ पे आपने कार्यक्रम लिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एक अवसर मुझे मिला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। Profoundly honored to have illuminatory personality contributing towards the agriculture, none other than the chief guest Shri Manoj Solanki sir, who is national member of ICR, managing trustee of Shri Ramakrishna Trust Kutch and president Akshay Krishi Parivar. So I kindly request you to please step forward and enlighten our farmer students with knowledge and experience. Over to you, sir. सभी को नमस्कार। सम्मानीय मंच एवं उपस्थित सभी किसान भाई और विद्यार्थी बंधु भगिनी, सभी को मेरा वंदन। आज आनंद की बात है कि भारतीय विचारधारा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खेती को हमने खेती संस्कृति माना है और धीरे धीरे वो सांस्कृतिकता की बात खेती में से निकल के खेती एक व्यवसाय और धंधा का रूप धारण कर लिया। तो हम मूल में से कुछ बात हम विस्मृत हुई है। भारत को सिखाने की जरूरत नहीं, भारत को स्मृति की जरूरत है। तो भारत कृषि के अंदर भारतीयता फिर से प्रस्थापित हो, वो इसलिए आवश्यक है कि आज कृषि ने कई प्रकार की समस्या खड़ी की है। जो हजारों सालों से अविरत चलने वाला व्यवसाय, एक परिवार, हर एक परिवार से जुड़ा हुआ व्यवसाय हर परिवार से धीरे धीरे छूटता जा रहा है। इसका कारण है कि कोई भी व्यवसाय तभी चलता है परंपरा में कि जब वो समृद्ध होता है। जब समृद्धि कोई भी व्यवसाय की छूटती है तो वो व्यवसाय भी छूटता है। और आज कृषि एक समृद्ध व्यवसाय होते हुए भी आज छूट रहा है। उसका मतलब है कि कृषि पद्धतियों में कहीं गलतियां हुई है, उसमें कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है, कोई समझण की बदल हुआ है, जिसके कारण एक समृद्ध व्यवसाय एक गरीब व्यवसाय बनता जा रहा है। और उसकी चिंता के अंदर आज हम नई पद्धति की सोच के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए ऐसे राष्ट्रीय सेमिनार की आवश्यकता खड़ी हुई है।
तो भारतीय परंपरा से कृषि के क्या मायने है? तो कृषि है वो वास्तव में प्रकृति करती है, कोई किसान कभी कृषि नहीं कर सकता। कृषि कार्य है वो प्रकृति का कार्य है, किसान उसमें भागीदारी कर सकता है। और किसान आज कृषि करने लगा और सभी जो स्टेक होल्डर थे प्रकृति के, उसको सबको धीरे धीरे निकालता गया और उसके कारण कृषि एक बोझ बन गई, कृषि एक कॉम्प्लिकेटेड बन गई और धीरे धीरे वो अपनी समृद्धि भी खो चुकी। तो प्रकृति को फिर से कृषि के साथ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और प्रकृति यानी क्या? समग्र जीव सृष्टि के माध्यम से कृषि हो रही है, समग्र पंच तत्वों के आधार से कृषि हो रही है। तो प्रकृति यानी पंच तत्व और 84 लाख जीवों के सहयोग से ही यह कृषि कार्य चल रहा है, जिसका मॉडल आज भी अविरत है। जंगल के अंदर कोई भी बीज गिरता है और उसमें पौधा पनपता है, फल लगता है, प्लांट प्रोटेक्शन हो रहा है, तो वहां कोई न कोई नाइट्रोजन दे रहा है, कोई न कोई पोटास दे रहा है, कोई न कोई फास्फोरस दे रहा है, कोई माइक्रो न्यूट्रिशन दे रही है। वो कौन दे रहा है? तो प्रकृति की व्यवस्था दे रही है। तो हमें मूल में से समझना है कि अकेला मानव कृषि नहीं कर सकता। कृषि एक मल्टी टैलेंट कार्यक्रम है, उसमें कई प्रकार का ज्ञान चाहिए। बीज का विज्ञान अलग है, उसका भी ज्ञान चाहिए, जुताई का ज्ञान चाहिए, कल्टीवेशन, सोइंग का, समय का, ऋतुओं का ज्ञान चाहिए। कई प्रकार का ज्ञान के आधार से कृषि सफल कृषि हो सकती है। उस समय ऐसा था कि परिवार कृषि कर रहा था, आज एक व्यक्ति कृषि कर रहा है। दूसरा समस्या ये है कि हम प्रकृति को छोड़ा और परिवार को भी छोड़ा, उसके कारण आज कृषि जो सफलता से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात है कि जो कृषि हजारों साल तक की एक स्टैंडर्ड था, एक सस्टेनेबिलिटी था, वो टिकाऊपना उसमें था, वो आज दिखता नहीं है। आगे जाके कृषि थम जाएगी ऐसा हर व्यक्ति को लगता है। आज वैज्ञानिक भी सोचने लगे हैं कि पानी की समस्या को कैसे ठीक करेंगे, जमीन का क्षरण को कैसे ठीक करेंगे, भोजन के अन्न के अंदर पोषण मूल्य नहीं है उसको कैसे ठीक करेंगे। हम प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ा दिया, प्रोडक्टिविटी में तो हम आगे बढ़े, मगर उसकी बड़ी कीमत भी चुकाई है, जिसका ध्यान अभी सुभाष शर्मा जी ने किया, बताया कि हमने कई रिसोर्स को खत्म कर दिया है, कई रिसोर्स को बिगाड़ दिया है। और ये खेती कुछ समय के लिए है, ऐसा मानसिकता से हम कृषि में से ज्यादा लेने का भाव रखते हैं। और कृषि सिर्फ मानव के लिए नहीं है, कृषि समग्र जीव सृष्टि का पोषण करने के हेतु है। इसी एक विशाल भाव जो हमारी कृषि कार्य में था, किसानों को मन में था, वो किसानी करते करते भजन गाता था, राम की चिड़िया राम का खेत, कालो चिड़िया बरबर पेट। जब वो जुताई करता था, धरती का पूजन करता था, एक समग्र प्रकृति का सहयोग का भाव था, जुड़ने का भाव था, सबको पोषण देने का भाव था। जब खेत में से अनाज निकलता था तो सुतार, कुम्हार, लुहार, ऐसे कई कारीगर जो कृषि न करने वाले मानव समाज था, चींटी को दाना, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, पक्षी को दाना, ये सभी की चिंता करने वाला किसान था, इसलिए उच्च खेती थी। आज वही उच्च खेती नीच खेती बन गई है, जबकि आज किसी को भी पढ़ाई करता है तो सबको नौकरी करनी है, खेती नहीं करनी है। गुलामी आज ऊंची लगने लगी है और गुलामी से भी नीचे कृषि गई है, उसका विजन और विचार और उसका तत्व निकल गया है। आज मेरी वैल्यू तब तक है कि अंदर जब राम बैठा है, मेरे में चेतना है, और जब चेतना निकल जाती है तो घर वाले भी बोलते हैं इसको रखना नहीं, अभी इसको छोड़ दो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। कृषि में भी उसकी चेतना निकल गई, उसका राम निकल गया, उसका मूल सिद्धांत निकल गया। तो हमें खेती के अंदर मूल में से समझना पड़ेगा। डीएपी यूरिया का ऑप्शन दे देना, वो ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। डीएपी यूरिया का ऑप्शन लेके हम खेती नहीं कर सकते, होलिस्टिक अप्रोच से समझना पड़ेगा, तब जाके आपको सफल प्राकृतिक किसान बन सकते हैं। एक मुद्दे का कार्यक्रम सिर्फ ऑर्गेनिक खातर ध्यान में आ गया तो बात नहीं बनेगी। आपको नेचुरल पेस्टिसाइड बना ली, प्राकृतिक कीटनाशक बना लिए, उससे समाधान नहीं है।
पूरी खेती की जो एक प्राकृतिक रचना है, अगर उसको हम समझ लेते हैं और प्रकृति को जोड़ देते हैं और हमारी व्यवस्था में जैसे प्लानिंग किया, ये सब प्रकृति का एकोमोडेशन का प्लानिंग हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया को हम माइक्रोबियल एक्टिविटी जमीन में कैसे बढ़े, पक्षियों की रहने की सुविधा कैसे बढ़े, पशुओं का जुड़ाव हमारे में कैसे बढ़े, ये सब फिर से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक समृद्ध और सफल और टिकाऊ खेती नहीं हो सकती। तो ये फंडामेंटल ज्ञान जो है वो फिर से हमें जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें अपना परंपरागत ज्ञान की जो बात है उसको निकालनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी और हमारे पूर्वज जो है उससे पास से सुनना समझना सीखना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी से नहीं सीख सकते। यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया वो कृषि का विज्ञान है, वो है रसायनों का विज्ञान सिखा रहे हैं। आज यूनिवर्सिटी भी स्वीकार कर रही है और वो भी बदलाव में है कि नेचर का विज्ञान आज उसने भी ट्रायल चालू कर दी है। ये एक आनंद की बात है, गलती का स्वीकार हो जाना वो भी आनंद की बात है। हाँ ठीक है, एक समय के लिए वो आपातकालीन योजना को रसायन का उपयोग किया है, वो उस समय के लिए सही था, मगर आज हम जब आरोग्य, पर्यावरण, धरती, पानी सब खत्म हो रहा है और हमारे पास सरप्लस अनाज है, तब हम क्यों न रसायन को छेड़ के प्राकृतिक विधि को जानने समझने जोड़ने में लगे। तो इस प्रकार से हमें ये सेमिनार से एक फंडामेंटल बात को हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हमें प्रकृति को समझना पड़ेगा, तो खेती ऑटोमेटिक समझ में आएगी। तो उस विश्वास के साथ आप मेरे को सुना और इस दिशा में आप सब जुड़े हैं, उसका आनंद लेते हुए मेरी बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे गोमाता। डॉक्टर हरिओम गांधी जी, ये डीआईजी एनडीआरएफ हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। सर 2 शब्द। All the respected dignitaries on the dais, farmers and dear student, मेरे को 2.5 महीना हुआ है नागपुर में आए हुए और मैं सर्च कर रहा था कि कहाँ पर ऑर्गेनिक मेरे को सब्जी मिल सकती है, क्योंकि मैं पिछले 18 साल से जहां भी जाता हूं सबसे पहले मेरा सर्च रहता है कि कहीं भी मेरे को ऑर्गेनिक मिल जाए। तो ये जो मेरा उद्देश्य था यहाँ लेके आया। अब दूसरा पार्ट ये है, मेरे को ऐसा भी लगता है कि मेरे को ऑर्गेनिक मिल जाए, लेकिन फिर मेरे बच्चे का क्या होगा, उसको अगर ऑर्गेनिक नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तीसरा पार्ट ये आता है कि जब उसका शादी होगा, उसकी वाइफ जहां से आ रही है, कौन सा भोजन खा के आ रही होगी वो। मेरी बेटी, उसकी शादी होगी, वो उसका जो हस्बैंड होगा वो कैसा खाना खा के आया होगा। तो जब हमको लगता है कि हम सब लोग खाली अकेले नहीं हैं, खाली मेरे को अच्छा मिल जाए उससे काम नहीं चलने का, बल्कि हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को अच्छा मिलेगा, तभी हम लोग एक साथ स्वस्थ रहेंगे और अच्छे रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और प्राण शक्ति रहेगी। दूसरा पार्ट, जब इतने मैंने सुना कदमश्री और सब शर्मा सर, सोलंकी सर और बाकी लोगों से जो बातचीत की, तो मेरे को कहानी याद आई छोटी सी गुरु नानक देव की। हम सब ने सुनी है कि जब वो लोग गुरु नानक देव मर्दाना के साथ में जब जा रहे थे तो एक गांव पे रुके। उस गांव के लोगों ने ना उनका ध्यान दिया, ना खाना पूछा, ना रहने के लिए दिया। तो उन्होंने उनको क्या बोला, बसो बसो, आप लोग हमेशा यहीं पर रहो। आगे बढ़े, दूसरे गांव में गए, वहां के लोगों ने उनको बुलाया, सत्कार किया, खाने के लिए दिया, रहने के लिए दिया। तो उनको उन्होंने बोला क्या, उजड़ो, सारे के सारे लोग उजड़ जाओ। तो उनका साथी जो मर्दाना था वो बड़ा परेशान हो गया कि भाई गुरु नानक देव बोल क्या रहे, इतने खराब लोगों को बसने के लिए बोल रहे हैं और जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको उजड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो इस मंच से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की खुशबू जो है पूरी दुनिया में फैले, आप सब लोगों का ज्ञान सब लोग लें, जिससे कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सके। करोड़ों सालों से ये पृथ्वी हमें हर चीज देती आई है, हम सब लोग समृद्ध रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जिंदगी अभी हम जीना चाह रहे हैं
जो कृषि और बाकी की चीजों से हमारा रिश्ता टूट चुका है, डिजास्टर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ा डिजास्टर है, उसमें एनडीआरएफ भी शायद ही कुछ कर पाएगी। सो नाउ डीलिंग विद दिस डिजास्टर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। हम सब लोगों ने, चौहान साहब को और बाकी सब लोगों को मैं रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का वर्कशॉप। इतने लोगों के व्यूज आई एम श्योर बहुत दूर दूर तक पहुंचेंगे, और जो स्टूडेंट हैं, जो कि आने वाला कल है, वो लोग इस बात को समझेंगे कि हमारे अकेले अच्छे रहने से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि हमें पूरी दुनिया को भी अच्छा बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। Now I call upon Madam Rani Kumudni ma'am for inspirational words. मंच पे उपस्थित सभी महाशय को और आज यहाँ पहुँचे हुए सभी अन्नदाता को और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मेरी बधाई, इसलिए कि इतना अच्छा नेशनल सेमिनार आज राजपूत जी और इनकी टीम ने किया है। और ऐसा भी एक दिन था, ऐसा भी एक साल था, 2013-14 की बात कर रही हूँ, जब मैं INM संभालती थी, तो जैविक के नाम सुनते ही दूर दूर सब भाग जाते थे। तो आज इसलिए मैं बधाई दे रही हूँ। तो आज तो यूनिवर्सिटी के VC मैडम भी आज यहाँ उपस्थित है और जज साहब भी यहाँ उपस्थित है, स्टूडेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं, और केवल अन्नदाता इसलिए आए हैं कि ये सब लोग हमको देख के, सुन के, किस तरह जैविक खेती के बारे में उनका विज्ञान बढ़ा के अब ये बात करने लगे हैं कि केमिकल फार्मिंग की जितने भी साइड इफेक्ट्स है उनको जान लो। केमिकल फार्मिंग के साथ साथ अभी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में सभी लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। जो केमिकल फार्मिंग के टेक्नोलॉजी के बारे में दूर दूर तक हम सुनते थे, उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी छापते थे, आज हम देखते हैं कि हर एक साइंटिस्ट भी क्लाइमेट स्मार्टनेस के लिए के बारे में, उसके टेक्नोलॉजीज के बारे में सब आपसे ही सीख कर सॉइल फर्टिलिटी के बारे में बोलने लगे। उसके जितने भी रिसर्च है वो भी पब्लिश होने लगे हैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमने तब किए थे, तो आज सॉइल के बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं है। तो इसी तरह पेस्ट मैनेजमेंट, बायो कंट्रोल के वजह से और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो बोलते थे, आज वही बात दोहराने की जरूरत भी नहीं है। तो फार्मर से लेके तक एक ही बोली आज सुनने के लिए मिला है। मंच में जो हम बैठे हैं और आपसे भी सबका एक ही भाव है कि हम अपना एग्रीकल्चर को क्लाइमेट स्मार्ट बनाना चाहिए। और एग्रीकल्चर ऐसा एक शब्द है जो सॉइल से जुड़ी हुई है, क्लाइमेट से जुड़ी हुई है, पानी से जुड़ी हुई है। तो उस क्लाइमेट को हम अपने फार्म में लाना चाहिए। ये सीखी है आज इतने सारे अच्छे अच्छे लोगों ने इस बात को है अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। अब देखिए, जब केमिकल फार्मिंग की बात आती थी, केवल आपको फर्टिलाइजर कंपनीज या पेस्टिसाइड कंपनीज आपके सामने आपके घर तक पहुंच जाते थे। लेकिन जब हम जैविक खेती या फिर नेचुरल फार्मिंग के, ट्रेडिशनल फार्मिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग के टेक्नोलॉजीज आपसे सीखने के लिए आज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं। आपको जोड़ के रखने के लिए FPOs जैसे एक शब्द को लाया गया है, जो आप मिलके काम करेंगे, आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा और आपका नाम हम सबको पता चले। आज केवल हम गूगल करने से हमको पता चलता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं। मालूम है के टाइम में हम घर बैठे था, जो सबको मालूम हुआ, परिचित किया कि कहाँ पे क्या मिलता है, और हर एक जैविक फूड हमको अमेज़न पे मिलना शुरू हो गया है। और एक जैसा सबको इकट्ठा करने वाला एक चीज था ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो तब से लेके आज तक हम ग्रो कर ही रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ INM डिवीजन में जो एक बहुत छोटी सी मात्र का ये जैविक खेती का एक छोटा सा स्कीम था, जो बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए आई थिंक 25,000 बनाने के लिए एक स्कीम
था हमारे पास, और एक कंपोस्ट बनाने का एक स्कीम था। और ये दोनों चीजें ट्रेनिंग करने के लिए हर जगह पे हम जाते थे। और एनसीईएफ का ये प्रयास था कि यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट से हम जुड़े, यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट भी, आईसीएआर साइंटिस्ट भी इसके बारे में करे, और आईसीएआर साइंटिस्ट फार्म ट्रायल्स करे, सबको बताए कि जैविक फार्मिंग का भी एक टेक्नोलॉजी होता है। तो अभी क्या बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है, कब बारिश आती है। अब ये सोचने लगे हैं कि कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी सूखे पड़ सकते हैं। तो इस तरह की एक माहौल चेंज जो क्लाइमेट में आए हैं, हम सब मानने लगे हैं कि इसी एक वजह है कि हम केमिकल की तरफ थोड़ा ज्यादा ही हमने फोकस दिया है। लेकिन हमारा आज का ये जरूरत है कि हम हेल्दी बने। हम बहुत सारा स्टडीज भी देखे हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स बड़े हैं, या तो फिर इनफर्टिलिटी के केसेस बड़े हैं, या तो फिर सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स जो बड़े हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स जो बड़े हैं। हॉस्पिटल्स के एक से बढ़कर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आज बनने लगे हैं। और जब आप डॉक्टर्स के पास जाओ तो एक ही बात बोलते हैं, सात्विक आहार खाओ। तो आप ढूंढो आपको कहाँ ये मिलेगा। व्हाइट राइस मत खाओ, थोड़ा सा मिलेट्स भी खाना शुरू करो। तो ये सब आप खुद भी जानते हैं, और हम अभी भी ये सब चीजों के बारे में अगर बोल रहे हैं तो इसका श्रेय केवल और केवल अन्नदाता को जानता है। ये ऐसी बात नहीं है कि हम आज इस मंच पे आप सबको बुला के केवल एक अवार्ड दिए हैं। यहाँ पद्मश्री खुद बैठे हैं हमारे साथ। ऐसा एक माहौल में हमको याद भी रखना है, अगर हम स्वस्थ रहना है, हमको ऑर्गेनिक फूड मिलना है, तो बनाने वाले कौन है? बनाने वाले करोड़ों फार्मर्स है। तो उसको इकट्ठा करना है, उसको किस तरह की सेवा की जरूरत है उसको जानना है, उसको जो भी स्कीम्स जरूरत है, जो भी टेक्नोलॉजी जरूरत है, जो भी ट्रेनिंग जरूरत है, उसके पास हमको जाके ये सब उनको सिखाना है। और यही एक ख्वाहिश आईएनएम डिवीजन का भी था, और आज गवर्नमेंट में भी यही बात बार बार सुनने के लिए आया है। और ये बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैंने सबको बधाई देने की बात से ये भाषण शुरू किए हैं, इसलिए कि मैं मानती हूँ कि ऐसा माहौल आएगा, आना चाहिए, ये आशा 2013-14 में रखती थी। और आज ये माहौल आई है जब सेपरेट एग्जीबिशन एक ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए मिली है, सेपरेट एफपीओस ऑर्गेनिक फार्मर्स के बन रहे हैं, और आपको सब इतने सारे प्राइजेस मिल रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है, और भरपूर हम आज बहुत हैप्पी होके यहाँ से निकल रहे हैं। ये तो मेरे वोट ऑफ थैंक्स की जैसी एक स्पीच है। हम किसी को कोई बात सिखाने के लिए नहीं आए यहाँ पे, या आप सबको देख के इतना मन भर गया है कि आज अन्नदाता के साथ एनडीआरएफ भी वाले भी बैठे हैं, हाई कोर्ट जज भी बैठे हैं, ट्राइबल कमिश्नर भी आए हैं, और पद्मश्री खुद आके यहाँ हमको सिखा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बधाई होने की माहौल है। ये भावना से हम आज जा रहे हैं, और मे द ट्राइब ग्रो। आई फील दैट this kind of farmers should grow in India. And then what we proved in COVID in the entire world, that India stood in COVID only because of farmers. May such farmers always take our country ahead. Jai Hind and Jai. के जोरदार तालियों के साथ में मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा, सो प्लीज वेलकम साई शराउली। Ah
डॉक्टर रमन जोली सर, डायरेक्टर सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सर एक प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट है जिन्होंने प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी रिसर्च और उनके फील्ड एक्सपीरियंस से आज तक न जाने कितने लोग सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल खेती को प्रेरित कर रहे हैं। और आज इसी विषय के ऊपर में हमें डिटेल्स में जानकारी देने के लिए वो आज हमारे बीच में उपस्थित है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स वेलकम डॉक्टर रमन जोली सर विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एक बार जोरदार तालियां हमारे सर के लिए। सबको नमस्कार। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नाम के एक संस्था में काम करता हूँ। मैं भी बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ा हूँ तो बहुत सालों पहले, 20 साल पहले हम आंध्र प्रदेश में जब किसानों का आत्महत्या बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उस समय हमने सोचा कि किसानों के साथ डायरेक्टली काम करना है और जो खेती से जमीन नुकसान हो रही है इसको कैसे बचे, और ये करने से जो किसान की आत्महत्या भी हो रही है उसको भी कैसे बंद करें। ये दोनों के ऊपर हम काम करने के लिए शुरुआत किया 2004 में ये संस्था सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब हम भारत में बहुत राज्यों में काम करते हैं, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी, हम विदर्भ में कुछ जिले में काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, और छत्तीसगढ़ में भी काम करते हैं और कुछ संस्थाओं के साथ छत्तीसगढ़ में। तो हमारा कार्यक्रम यह है कि किसानों के साथ काम करते हुए उनको ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाना और किसानों को इकट्ठा करके कोऑपरेटिव बना के किसानों को मार्केट तक पहुंचाना। ये दोनों के ऊपर हम काम करते हैं। दोनों के साथ साथ हमको ये भी पता चला कि सिर्फ प्रोडक्शन और मार्केटिंग में नहीं है, खेती में ज्यादा सा संकट पॉलिसी में भी है। जब तक पॉलिसीज नहीं बदलेगा, सिर्फ किसान को बदलने के लिए या ग्राहक को बदलने के लिए हम बात किया तो बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव आना है तो पॉलिसी के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। तो इसलिए हम ये तीनों के ऊपर काम करते हैं। और ये से RCYNF के साथ भी काम करते हैं हम। रीजनल काउंसिल है, हम PGS ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी करते हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये चारों राज्यों में मिलके almost 66,000 farmers and 1,15,000 hectares of land is certified by CSA. So this is nearly 10% of the total certification done under PGS, done by CSA. I think by next year we will be doing much more because Andhra Pradesh is coming in a big way in this entire area. तो दो तीन बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अब जो संकट हम देख रही है खेती में, किसानों के साथ या खेती के साथ जो संकट देख रही है, इसमें ज्यादा सा संकट मिट्टी के साथ है। मिट्टी का ऊपर का 1 सेंटीमीटर बनने के लिए 200 साल लगता है। 200 साल लगता है एक सेंटीमीटर का मिट्टी बनने के लिए नेचुरल प्रोसेस में। अगर ऐसा ही छोड़ दिया तो वो बनने के लिए 200 साल लगता है। हर एक साल मिट्टी, अगर ये 200 साल में 1 सेंटीमीटर का मिट्टी बन रही है तो एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1 टन मिट्टी बनती है। 1 टन मिट्टी बनती है। बट आज के दिन हमारी जो खेती में हम जो कर रही है, ज्यादा सा टिलेज कर रहे हैं ना, प्लॉविंग करते हैं, छोड़ देते हैं, वैसा इसकी वजह से हर एक साल भारत में 16 टन का मिट्टी हम खो रही है। पानी से, हवा से उठ के जाने वाली मिट्टी है या पानी में मिला के बाहर जाने वाली मिट्टी है, वो 16 टन है। तो एक साल में 1 टन बनती है, हम खो रही है 16 टन। तो समझ लीजिए हम खेती
आज की आधुनिक रूप से करके करके क्या बना रही है। जो मिट्टी इतनी साल लगती है बनने के लिए वो सब बाहर जा रही है। ये सबसे ज्यादा समस्या है हमारे सामने, क्योंकि ये मिट्टी, ये जमीन सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा भविष्य का भी है, हमारा बच्चों का भी है, उनका बच्चों का भी है, और उनका भविष्य को हम छीन रही है। वी आर नॉट ओनली स्पॉइलिंग आवरसेल्व्स बट वी आर स्पॉइलिंग द फ्यूचर। लोग सोच सकते हैं मिट्टी नहीं तो क्या हम हाइड्रोपोनिक्स कर सकते, फैक्ट्री में फूड बना सकते। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हमको चाहिए वो सब मिट्टी से आती है। हम सोचते हैं कि हेल्थी फूड खाना है तो एक अंडा खाएंगे, कैरेट खाएंगे, कैरेट खाए तो विटामिन ये आएगा, और पालक खाए तो और कुछ विटामिन आएगा। हम सोचते हैं ना, हम कॉलेज में पढ़ाया है, पर वो पालक में या वो गेहूं में या वो वो कैरेट में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। जहां मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है वहां फसलों में भी वो फसलों में भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ये सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, ये बहुत सारे रिसर्च भी हुआ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का एक रिसर्च बताती है पिछले 30 साल में न्यूट्रिएंट्स 30% से भी कम हुआ है सेम फसल में। पालक 30 साल पहले जितना न्यूट्रिशियस था आज के दिन उतना न्यूट्रिशियस नहीं है, क्योंकि मिट्टी में आयरन नहीं है तो फसल में आयरन नहीं है, फसल में आयरन नहीं है तो आपका फूड में नहीं है, आपका फूड में नहीं तो आपका भी नहीं है। तो भारत का अगर आप पूरा एनीमिक एरिया को अगर आप मैप किया तो हमको ये सीधा बात चलता है कि एनीमिया ज्यादा कहाँ है। एनीमिया ज्यादा है जहां सॉइल में आयरन नहीं है, और हम मिट्टी का ये समस्या को दूर करने के लिए कोशिश नहीं कर रही है। हम सोचते हैं कि बायोफोर्टिफाई करें, आयरन लाके दान में मिक्स करके हम सबको देंगे, तो इससे काम होने वाला नहीं है। एक दूसरा बड़ा रिसर्च आया था, ये भी आईसीआर का रिसर्च है। आज के दिन जो हम बीज यूज कर रही है, आज के दिन जो नया बीज जो हम इस्तेमाल कर रही है, वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लेना भी बहुत मुश्किल हो रही है। अगर न्यूट्रिएंट्स खाए तो भी वो नहीं ले रही है। तो समझ लीजिए हम सब में भी ऐसा प्रॉब्लम्स आती है। हम खाना खा रही है बट उससे न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले पाएंगे, तो अब्जॉर्प्शन कम हो रही है। ऐसा प्रॉब्लम भी हम अब नया वैरायटीज में देख रही है। ये स्थिति में अगर हम भारत का फ्यूचर देखा तो यू नीड हेल्दी इंडिया, यू नीड हेल्दी फूड। हेल्दी फूड कैन ओनली कम फ्रॉम हेल्दी सॉइल। जब तक आप ये शिफ्ट नहीं करेंगे ये होने वाला नहीं है। दूसरा जो पेस्टिसाइड्स की बात होती है, कीड़े को मारने वाली जो भी केमिकल है वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर भी हम सब के ऊपर भी वही काम करते हैं जो कीड़े को मारते हैं। आप सोचते हैं कि आप मच्छर को मारने के लिए घर पे ऑल आउट रखती है, बट ऑल आउट क्या करती है? आप पूरा रूम को पॉइजन कर देते हैं और वो पॉइजन में आप सो रही है। सेम किसान खेत में वही कर रही है, खेत को पूरा पॉइजन बना रही है और उसमें फूड डंप बना रही है। तो ये सब रेसिड्यूज हमारी फूड में आने की वजह कारण आज के दिन हम जो भी प्रॉब्लम्स बता रही है, हेल्थ प्रॉब्लम, वो सब इसी से आ रही है। बट इसे दूर कैसे होगा? आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। कैसे करें? सॉल्यूशंस बहुत आसान है। मेनी टाइम्स solution need not be as complex as the problem. समस्या बहुत गंभीर हो सकता है बट उसका सॉल्यूशन सिंपल भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा एक सिंपल सॉल्यूशन है। तो आज के दिन हम जो जितना भी केमिकल्स यूज कर रही है उसको बंद किया तो नेचर अपने आप वापस आती है। बट वापस आने के लिए 2-3 साल लगता है। तो वो 2-3 साल में हम क्या कर सकते हैं so that we can catch up with the transition, वो हम करने की जरूरत है। Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you.
already we have seen very excellent work हमारा फार्मर्स किए, सभी डिपार्टमेंट्स भी किए ऑर्गेनिक फार्म से तरफ से, ये नेचुरल फार्मिंग के तरफ पे. बट एक्चुअली दिस हाउ मेनी पीपल दे आर रिसीविंग इट फॉर आगे लेने के लिए. Why our government of India is so keen about this? This we have to think about this one. Actually, when I have worked with KVKs, that time the organic farming it was initiated during '93. I have put some vermi compost demonstrations. वो फार्मर का खेती में हम लोग demonstrations लिए. ये करीमनगर का डिस्ट्रिक्ट है. Now it is in Telangana. There, when I am going there, people used to call me that Yatram's Madam came. That time the exposure was not that much. People were not known about it. Now, people they were aware of this one, at least organic farm. After that, a lot of things were taken, and lot many things were happened now. Now, why we are talking now is a great challenge as far as this is concerned. Our farmers, now why we are so keen about all these things? Just we will see, we want to, I am not going to, आप सभी लोग, आप पूरा एक्सपीरियंस लोग हैं, आप सभी लोगों को मैं बताने के लिए नहीं आए. हम सभी लोग वो समझ में आके हम लोग क्या करना, हम लोग ये प्लानिंग कर सकते. यही है हमारा decision now. Now, why we are talking about this organic farming and natural farming for further extension of this one? The most important thing, ये हमारा देश में क्या कौन सा कैटेगरी का फार्मर्स ज़्यादा है? आप लोग पूरा डर हुआ, सुबह से बहुत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए ना. आप सभी ऐसा कैसा हुआ, डल हुआ है तो हम लोग कैसा लेके जाते ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग आप हम लोग बढ़ाने के लिए ना. एटलीस्ट यू पीपल हैव टू स्पीक नाउ. व्हाई हु इज मोर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मर्स आर मोर इन इंडिया? स्मॉल एंड मार्जिनल. Then what is our state? You see the status of our farmers is lack of investment. हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम है. Low level of technology use and which is resulted in low productivity. हम लोग ये ज़्यादा पैसा कमाने वाले नहीं हैं. यही है हमारा प्रॉब्लम. Because of that, what is happening? That small and marginal farmers, non-viable entrepreneurs over a long period of time. What is it? Why we are talking about this one? Next slide, please. Next. These are so many doubts. I am not going to read all these things. Just I am telling. Because our farmers income is कम है. वो हम लोग क्या कैसा खेती करना, क्या करना, यही है प्रॉब्लम. फार्मर को बहुत डाउट्स है. हम लोग बोलते ना, वो one side we are talking about the good aspects of organic and natural farming, health, all these things, and another thing is income भी होना है ना. वो आदाय के वैसा कुछ भी कर सकते क्या हम लोग? एक हेल्थ भी देखना पड़ता, ये नेचर भी देखना पड़ता, ये आदाय इनकम भी देखना पड़ता. यही है हमारा. फार्मर हैज सो मेनी डाउट्स फॉर बैलेंसिंग ऑल दीज थिंग्स. ही हैज गॉन नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट, these are all his doubts. What type of what crops हम लोग करना, क्या करना, कैसा करना. Next. Now these are the things which we have to see. All of us, you are all working in the field. हम सभी लोग खेती में काम करते. वो हमारा एक्सटेंशन ऑफिसर्स का नंबर कम है. उस टाइम में हम सभी लोग को एक्सटेंशन का रोल प्ले कर रहे. यही है हमारा फ्यूचर थिंग. कीपिंग दिस इन द व्यू, हम लोग खेती करना है तो व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज वी आर टेकिंग इनटू दिस. हम लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्शन करना है तो वी हैव मेन प्रोडक्शन फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल. वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड. वो खेती के बारे में हम सब लोग भाषण करते हैं ना सुबह से. दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन फैक्टर.
That is why we are talking about we are observing in majority of the Maharashtra also, even oranges without vitamin C we are observing. That is the problem which we are facing now. And labor, you kindly tell one thing, we are all talking about the Annadata, farmers. We have such a respect with the farmers. Now we farmers, they are working with labor roles means, what are the role we have to play? Extension officers. You are all extension officers. गांव का एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है ना, हम लोग सभी लोग वो रोल प्ले करते, हम लोग वो रोल प्ले करना है तो एक्सटेंशन ऑफिसर का रोल प्ले करना है तो हम लोग क्या करते? You tell me one thing. We want to make the farmers, keeping them here, and we are talking with Ayo Papa poor farmer, or we are making them to keep in a bigger way. In reliance or like this, we are making them as an entrepreneur in organic or natural farming, keeping all the main aspects in the view, which is our major role. Yeah, the extension officer, what we are going to make as farmers, we have to keep them as it is in the present condition, or we are taking him to the next level. Huh? Yes, next level we want to take means, our role we have to take, land has to be kept in a good place, and the labor roles has to be taken capital. For this we are talking, Government of India has taken a lot of initiatives after independence, first of its kind. They have taken a good lead role in soil health card, so that after independence, first time they thought about the soils. We have to keep soil. Keeping this in the view, we are going to play a bigger role. As far as this is concerned, the major production factors we want to keep, along with this market, valuation, these are all taken care now. This is as far as the organic or natural farming is concerned. Are you clear now? Our role is to protect all production factors by playing extension role. What is this? Next, adoption categories. Previous slide. Next one is adoption. गांव के सभी लोग, अब हम लोग ये सभी लोगों को, आपको टेक्नोलॉजी ज़्यादा है आपके पास. Everybody they are coming and telling. Then what is our role we are supposed to play? आगे बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनिक को, नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करना है? गांव का, आप लोग गांव का गए तो क्या क्या तरफ से फार्मर्स आप देखते? अब बताओ. Different categories of farmers we are observing. Suppose if you go to the village, one farmer, he is immediately, if you take organic farming, you take blue green algae, you take Jivamrutam, or like this, if you are telling, immediately they will do. Other farmers, they may not take. That's why first category of farmers, immediately गांव को जाने के बाद हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बताए तो immediately they will adopt. They are called innovators. Next one, after seeing innovators, next category is early adopters. Next coming to the early majority, next coming to the late majority laggard. We are highly thankful to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for giving such a wonderful program, giving opportunity for all the farmers and industry people, and meeting with RCOF and NCOF officers. Thank you one and all. तो आपके जोरदार तालियों के साथ में आप सभी लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं धरती की पुकार, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, जिनको मैं आपके जोरदार तालियों के साथ में इस मंच के ऊपर मैं इन्वाइट करना चाहूंगा. सो एक बार जोरदार तालियां. मैं हजारों साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ. मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे. पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ. आपकी धरती माँ थक रही है. खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ. खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे. मेरे
बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं, रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है, मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है, मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। क्या कृषि अधिकारी साहब, ये हमें कहाँ जंगल में ले आए? क्यों भाई, तुमको ये जंगल बुरा लग रहा है? यहाँ इतनी हरियाली है, सब कुछ कितना सुंदर है, तो क्या हमारे गांव में हरियाली नहीं है? ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा कम हरा भरा है और यहाँ थोड़ा ज्यादा हरा भरा है। सुनो, हमारे यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी में बहुत फर्क है। वो कैसे? बाबूजी, 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 भैया मेरा चिप्स खा गया। नहीं बाबूजी, आधा मैंने खाया, आधा इसने खाया। नहीं, इसने खा लिया। बाबूजी ये झूठ बोल रही है। नहीं, तुमने खाया। नहीं, तुम बोलो, बाबूजी, तुमने मैं खाया। बाबूजी को नहीं, अभी तुमने खाया। क्यों खेत सिंह, मना किया था, हर जगह बच्चों को लेकर मत चलो, जब देखो चपर चपर। चुप कराओ इनको। क्या करें भाई, इनकी माँ नहीं है ना। लड़ो मत, वहां जाके खेलो, जाओ। अधिकारी साहब, ये बताइए हमारी हरियाली और यहाँ की हरियाली में क्या फर्क है? अरे बहुत फर्क है। तुमने मिट्टी में रासायनिक खादों को डालकर मिट्टी को खराब कर दिया है, जहर बना डाला है मिट्टी को, और अब जहर ही खा रहे हैं हम लोग। इसीलिए हमारी सोच भी जहरीली हो गई है। भले ही हम ऊपर से चमकते हों, लेकिन अंदर से खोखले हैं। तो क्या साहब, यहाँ की मिट्टी अमृत और हमारी मिट्टी जहर है? ठीक कहा तुमने। यहाँ की मिट्टी में अमृत इसीलिए है क्योंकि पारंपरिक और प्राकृतिक ढंग से खेती की जाती है। मिट्टी में जैविक खाद ही डाला जाता है और हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स और रसायन। जमीन के नीचे पानी तक को तो हमने जहरीला कर दिया है। धरती माता के एक अंग को जैसे लहूलुहान कर दिया है। हम कैसे मान लें? दोनों मिट्टी है हमारे पास, कहो तो जांच करके दिखाऊं। ए भाई, हमारी फोटो क्यों ले रहे हो? हम लोग नमूने हैं क्या? ये अधिकारी साहब है, आप लोगों से मिलने आए हैं। मिलने आए हैं और साथ में कचरा भी लाए हैं। ये प्लास्टिक के थैले, ये बोतल। अरे तुम लोग तो चले जाओगे, हमारी धरती माता का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग भी तो खाते पीते हो और जूठे पत्तल, बचा हुआ खाना और बहुत सारी चीजें इस धरती पर फेंकते हो, तो क्या धरती खराब नहीं होती? अरे तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब प्राकृतिक हैं, और जो कुछ भी बच जाता है उसे हम इसी मिट्टी में डाल देते हैं और वो वापस जैविक खाद बन जाता है। हम सदियों से इसी तरह प्रकृति के साथ चलते आ रहे हैं। हाँ, और हम नहीं चाहते कि कोई बाहर से आए और हमारी मिट्टी को जहरीला करे। ऐसे ही अंग्रेज भी आए थे हमारी धरती को जहरीला करने, तब हमारे पूर्वजों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। तुम्हें क्या लगता है? अरे आजादी की लड़ाई के कई गुमनाम योद्धा हैं जिन्हें तुम लोग नहीं जानते। 1854 में हमारी दो वीर बहनें फूलों और झानों ने अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें सजा भी दी। आज तुमने हमारी जमीन को गंदा किया और अब हम तुम्हें सजा देंगे। हाँ, तुम्हें सजा देंगे। हाँ, मुखिया जी को बुलाओ, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग और हमारी धरती माँ को गंदा किसने किया? अरे अरे ये क्या, धरती हिल रही है, लगता है भूकंप आया है। हे देवी माँ, तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? डरो मत, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं धरती माता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कहने आई हूं। तुम लोग रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से मेरी मिट्टी को जहरीला कर रहे हो।
तुम सोचते हो इसमें सिर्फ मेरा नुकसान होगा? पहाड़ों को काटते हो, नदियों के पानी में रसायन का विष मिलाते हो, मेरा दर्द तुम्हें महसूस नहीं होता? मेरी कराह तुम्हें सुनाई नहीं देती? जब मेरी ही मिट्टी जहरीली हो जाएगी तो उससे जो अन्न उत्पन्न होगा वो भी तो जहरीला ही होगा, और आने वाली पीढ़ी उस जहर को खाकर कमजोर होती चली जाएगी। धरती बंजर हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, खेत सूख जाएंगे। आपस में लड़ना बंद करो और मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुमने वेदों में नहीं पढ़ा कि धरती ही तुम्हारी मां है, प्रकृति ही जननी है? कृष्ण ने भी गीता में मेरी महिमा का वर्णन किया है। अपने पुराणों और धर्म ग्रंथों का कुछ तो पालन करो। हे धरती मां, हमें क्षमा कर दो। हम वचन देते हैं कि आपकी रक्षा के लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे। हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों को बंद करके प्राकृतिक रूप से खेती करेंगे और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। हे धरती मां, हमें क्षमा कर दो।